everyone, and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. Let's talk about gender education and development. So, my dear educators, in this video, we shall discuss benefits of girl education. Women who are educated help contribute and prosper the community, right? Obviously जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपना योगदान अपने सबसे पहले कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम. आप घर से शुरू करते हो, देन वी वर्क फॉर द सोसाइटी, कम्युनिटी, वी वर्क फॉर द नेशन एंड फॉर द एंटायर वर्ल्ड. अलग अलग जो फील्ड्स हैं उसमें जब कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, राइट? एक से भले दो, दो से भले तीन. आई मीन जितने ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी, राइट? Women who are educated are better equipped to contribute to the family income. Obviously, जैसे हमने बात किया सबसे पहले फैमिली में इनकम में जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली. जो है हम उसको लार्ज स्केल पर जब विजुलाइज करें तो कंट्री का जीडीपी जो है वो इंक्रीज होता है. तो women should be there. Okay, working women, they help in increasing the income, family income, and overall increase in the GDP of the country. Women who are educated are less likely to become victims of domestic and sexual abuse. जब पता होता है अपने राइट्स के बारे में कि क्या हमारे राइट्स हैं, हम वी आर अवेयर, ठीक है, हमारे पास वो एजुकेशन गिव्स अस वॉइस एंड चॉइस, राइट? कॉन्फिडेंस आता है, राइट? सो वी विल विक्टिम नहीं बनते हैं इन सब सोशल जो अब्यूजेस हैं उनके. And women who are educated are less likely to be taken advantage of. आपका कोई फायदा नहीं उठा सकता when you are aware of that. You are aware of your rights. You are aware of different provisions that are there in the constitution, right? Women who are educated are more able to influence the future, right? अपना फ्यूचर बनाएंगे, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे, अपनी फैमिली को बेटर जो है वो environment दे पाएंगे, right? So and women who are educated can reduce poverty. Obviously जब हम सारे मिलके काम करेंगे, everybody will work, the youth will be involved in that, right? You will be educated enough, तो फिर उसके accordingly poverty जो है वो कम हो जाएगी. Women who are educated reduce the risk of child mortality, right? आप देखिए बहुत बार क्या होता है कि इग्नोरेंस की वजह से कोई चीजें नहीं पता होती, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. सो बहुत बार जो है इवन ड्यूरिंग मैटरनिटी ऑल्सो बहुत बार ऐसे केसेस हो जाते हैं. वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर सेल्स और न्यूट्रिशन का, हेल्थ का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं. पर बच्चों का ध्यान रखते हैं अपना भी और बच्चों का भी, जो सर्वाइवल है वो बेटर होता है. Women who are educated are 50% more likely to have their children immunized. इम्यूनिटी का ध्यान रखते हैं, वैक्सीनेशन का ध्यान रखते हैं, टाइमली कराना है. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी बिकम अवेयर ऑफ दैट. Apart from it, there are some another points like reducing domestic and sexual violence, increasing involvement in the political processes, decreases malnutrition, and reduces population explosion. When you know, you are aware of that, aware of yourself, your work, your future, obviously it will not happen. And reduce infant mortality, we have already discussed. मैटरनल मोर्टेलिटी, जब अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे, तो अकॉर्डिंगली वो केसेस जो मोर्टेलिटी के हैं वो कम हो जाते हैं. एंड देन इम्प्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे हमने बात किया कि नेशन वाइड जो है वो जीडीपी इंक्रीज होता है. रिड्यूसिंग द चाइल्ड मैरिजेस ऑल्सो. व्हेन यू आर अवेयर, अर्ली मैरिज नहीं होनी चाहिए, गो फॉर हायर एजुकेशन, राइट? तो ऑब्वियसली जब women when they'll be aware, they will not be involved in, अपनी वॉइस वो आगे रख पाएंगे कि yes, मैं I don't want to go ahead with the child marriage, early marriage, but I want to pursue the higher education and all. You will have that confidence. So these are the benefits of girl education. Now see, let's talk about some more points. Benefits of girl education in India, I mean that is also there in India and everywhere, right? So educating women positively impacts the economic, social, health standards improve hote hain. High female literacy rate hota hai, uske wajah se reduces the child mortality also. Education lowers the crime rates, right? Girls education reduces inequality in the society. तो gender inequality की बात करते हैं हम कि gender inequality है, उनको rights नहीं मिलते. when जब हम अपने rights के लिए aware होंगे, we'll fight for our rights, right? So certainly जो inequality है वो कम हो जाएगी. We'll come to a state where there we talk about planet 50-50, right?
And education empowers marginalized women and help them build better futures for themselves and their families. अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक बेटर फ्यूचर वो है वो डेवलप कर पाएंगे by earning more also, by being educated, by being more aware, right? An educated society is more stable and can recover faster after a conflict. फैमिलीज में कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत बार होता है, पर जब एजुकेटेड होते हैं, हम समझदार होते हैं, समझते हैं, और उसके बाद में जो है वो पैचअप करते हैं, समझते हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, कंडीशंस को, तो वी आर एबल टू रिजॉल्व आवर कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो. बट वी कैन गो हेड अदरवाइज आल्सो. आई मीन सम पीपल दे थिंक कि जैसे पढ़ रहे हैं, विमेन ने जब जॉब में कदम रखा है तो उसकी वजह से जो फैमिलीज हैं वो ज्यादा टूटनी शुरू हो गई हैं, डिवोर्स केसेस ज्यादा हो गए हैं, सेपरेशन के सिंगल पेरेंट्स ज्यादा हो गए हैं. बट वो दैट इज अनदर एस्पेक्ट. मतलब हम अपने राइट्स के लिए अवेयर हैं तो व्हाई, आई मीन वी विल नॉट गो हेड विद द डोमेस्टिक एंड एनी काइंड ऑफ वायलेंस, राइट? तो उसके लिए तो वो एक पॉइंट है आगे रखना. वी बिकम more educated, we become more aware, right? Educated girls are less likely to marry at young age, right? And are more likely to raise healthy children. जल्दी शादी होती है, जल्दी बच्चे हो जाते हैं, और बच्चे वीक होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट? मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होता है. अगर आपका टाइमली अर्ली मैरिज नहीं होगा, obviously you will be able to raise healthy children. Women who complete higher education and acquire skills ड्रामेटिकली इंक्रीज लाइफ टाइम अर्निंग्स के लिए जाते हैं, फैमिली को सपोर्ट करते हैं, नेशन को सपोर्ट करते हैं, राइट? दीज आर द मेनी बेनिफिट्स ऑफ गर्ल एजुकेशन. इसमें और भी जो पॉइंट्स आपको याद है, यू कैन ऐड, राइट? And kids of educated women are less likely to experience malnutrition and राइट स्टंटिंग. उनको पता होता है कि मेरे बच्चे को कौन सी चीज खिलानी है, क्या करना है. दे आर अवेयर ऑफ दैट. ओके, इंडिया इज मेकिंग अ कंटिन्यूअस एफर्ट टू प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन टू women in all parts of the country in different states, and it is evident that education plays a vital role in economic development, scientific advancement, cultural preservation, and social equality. In a decade, India is going to be the world's most populated country, and the steps we take today in the education sectors are going to impact the lives of billions of Indians in the future. पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझ पाएंगे छोटी फैमिली, स्मॉल फैमिली का क्या इंपॉर्टेंस है, हाउ वी कैन गिव अटेंशन टू ईच एंड एवरी चाइल्ड इन द फैमिली इक्वली, सबको मौका मिले आगे बढ़ने का. ये नहीं कि घर में बहुत सारे बच्चे हैं, 5-7 बच्चे हैं, और उसमें से जो देन फिर सोचना पड़ता है कि प्रायोरिटी किसको दे. बॉयज को पढ़ने के लिए भेज दो, गर्ल्स घर का काम कर लें, और खाना है किसको ज्यादा चाहिए, ज्यादा काम कर रहा है. मतलब बहुत सारी ऐसी आज की डेट में भी कैन यू इमेजिन देयर आर फैमिलीज आई नो वेयर खाने के लिए भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि किसको कितना मिले. उनको लगता है कि गर्ल्स को तो शायद इतना सा हाफ ग्लास मिल्क मिलना चाहिए, बॉयज को पूरा मिलना चाहिए. आई डोंट सच काइंड ऑफ practices are being followed even today till date, right? So understanding the gravity of the situation, the Indian government came up with a new national education policy which aims to drastically improve the education ecosystem and increase the literacy rates of women across the country. And there are some initiatives also. We will be talking about different initiatives taken by the government, right? Exam में भी पूछे जाएंगे, right? थोड़ी गवर्नमेंट पॉलिसीज की अगर हम बात कर लेते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है आपके पास. किस लिए किया गया, क्यों किया गया? हरियाणा में किया गया टू जनरेट अवेयरनेस. स्टार्ट किया गया एंड देन ऑल ओवर इट वाज, आई मीन पर्टिकुलर इट वाज स्प्रेड ऑल ओवर टू जनरेट अवेयरनेस एंड improve the quality of welfare of the services and their access to women and rights. The scheme is also trying to address the declining child sex ratio in the country. हमारे कंट्री में जो चाइल्ड की सेक्स रेशियो है उसमें जो डिफरेंस है, गर्ल्स की रेशियो कंपैरेटिवली लेसर एज कंपेयर टू द मेल काउंटर पार्ट्स. सो उसको इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का स्कीम जो है वो शुरू किया गया. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय for setting up a residential school of girls belonging mainly to the backward and minority communities के साथ में जो belong करती हैं, अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं, पीपल हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो गर्ल्स हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स का जो है वो डेवलप किया गया. द स्कीम वाज मर्ज विद सर्व शिक्षा अभियान के साथ मर्ज किया गया इन 2008. लाडली इज द स्कीम was launched and implemented by Delhi and Haryana government. दोनों में लॉन्च की गई in 2008. The aim of this scheme is to control female feticide as well as improve the status of the girl child through education and equal gender rights. क्या हो रहा था कि सेकंड गर्ल हो रही थी तो ऑब्वियसली क्या किया जा रहा था कि सेकंड गर्ल है तो देन इवन विद द फीमेल feticide and all.
तो उसको रोकने के लिए सेकंड गर्ल के लिए, सेकंड चाइल्ड के लिए इनिशिएटिव किया गया कि उसके लिए कितना अमाउंट, एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड एट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, और जब वो बच्ची बड़ी हो जाएगी तो उसमें कितना अमाउंट पड़ा करके उसको दिया जाएगा, राइट। एंड लाडली लक्ष्मी योजना introduced by Madhya Pradesh government. It is also similar to that kind of scheme, but objective is to lay firm education for the future of the children through improvement in educational economic status and bring about a positive change in the social attitude towards the birth of a girl. ये भी एक स्कीम एमपी में लॉन्च की गई, लाडली लक्ष्मी योजना, गर्ल्स के बेनिफिट के लिए. सबला was launched by Ministry of Women and Child Development in 2011 and aims to empower adolescent girls through education. Right? Dhanalakshmi started in 2008 by the Ministry of WCD, Women and Child Development, and it aims to provide cash transfers to the family of a girl child after birth, registration, immunization की कैश कितना उनको ट्रांसफर करते हैं ताकि गर्ल्स की केयर कर सकें, उनकी अपब्रिंगिंग कर सकें. Kishori Shakti Yojana, launched by the Ministry of again Women and Child Welfare. It aims to improve the nutritional and health conditions of the adolescent girls की, जो देखिए puberty में, adolescence age में की लड़कियों को बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है उनकी health nutrition के लिए, और मे बी कीपिंग themselves हेल्थ को प्रॉपर रखने के लिए, अपना हेल्थ एंड हाइजीन सैनिटेशन के लिए, तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है. देयर आर नंबर ऑफ चेंजेस इन द बॉडी, तो उस चीज के लिए उनके लिए एक प्रॉपर स्कीम लॉन्च की गई. किशोरी शक्ति योजना, किशोरी इज किशोरा अवस्था, प्यूबर्टी से रिलेटेड है, एडोलेसेंस से रिलेटेड है, यू विल रिमेंबर कि एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए. सुकन्या समृद्धि योजना, अ सेविंग स्कीम लॉन्च टू इंश्योर इक्विटेबल शेयर टू द गर्ल चाइल्ड बाय द, एक फैमिली में लड़की को भी प्रॉपर हिस्सा मिले, राइट. एक सुकन्या SSY योजना जो है वो लॉन्च की गई. इसमें क्या एक पर्टिकुलर एक अमाउंट है जो बच्चे के गर्ल की अकाउंट में एवरी ईयर डिपॉजिट किया जाता है. जब गर्ल 18 साल की हो जाती है तो होल अमाउंट इज बीइंग ट्रांसफर टू द गर्ल्स अकाउंट, ताकि वो अपने आप हैंडल कर सकती है जब उस चीज को, राइट. सो दैट इज देयर टू गिविंग इक्वल शेयर टू द गर्ल्स ऑल्सो. ये नहीं कि उनके लिए कुछ नहीं है, फैमिलीज में बहुत जगह पे डिस्क्रिमिनेशन होता है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एक उड़ान स्कीम जो है वो लॉन्च की है, बिगेन अ स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द गर्ल्स हु आर द ओनली चाइल्ड ऑफ द पेरेंट्स. ठीक है, हर साल हमारे स्कूल में जो फॉर्म आते हैं कि आपके पास 10th स्टैंडर्ड में कौन से बच्चे हैं, दे आर द ओनली चिल्ड्रन, राइट. तो उनकी फैमिली इनकम अगर पर्टिकुलर एक लेवल से कम है, राइट, तो उनको आगे लाने के लिए उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है फॉर द हायर स्टडीज. सो दिस इज अनदर स्कीम. तो आप इन स्कीम्स के बारे में लिख सकते हैं. दिस इज द उड़ान स्कीम जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी. उड़ान बाय CBSE टू गिव विंग्स टू द गर्ल्स स्टूडेंट्स. It's a project launched by CBSE under the guidance of Ministry of Human Resource and Development, Government of India, Ministry of HRD, now which is Ministry of Education, MOE, to address the low enrollment of the girls in the prestigious engineering institutions and the teaching gap between the school education and the engineering entrance examination. उस गैप को कम करने के लिए कि हायर एजुकेशन के लिए गर्ल्स जा ही नहीं रही थी, ओनली बॉयज दे वर परस्यूइंग दैट काइंड ऑफ कोर्सेज एंड ऑल, तो उस चीज के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई. एंड द एफर्ट इज टू एनरिच द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एट स्कूल लेवल बाय एड्रेसिंग द 3 dimensions of education: curriculum design, transaction and assessment, right. तीनों डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ, सबसे पहले क्या है, लो एनरोलमेंट होता था गर्ल्स का टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, उसको बढ़ाने के लिए. टू एनेबल एंड एम्पावर द गर्ल स्टूडेंट्स टू फुलफिल देयर एस्पिरेशंस ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में गर्ल्स भी जा सकती हैं, ये नहीं कि दैट इज मेंट फॉर ओनली बॉयज. हमारी जो करिकुलम का डिजाइन ही कुछ ऐसा है, आई मीन हमारा जो करिकुलम है, हमारी जो बुक्स हैं जेंडर बायस्ड है, जिसमें कि हमेशा डॉक्टर दिखाया जाए, इवन माय डॉटर सेज कि वो डॉक्टर तो बॉयज होते हैं. क्यों? बुक्स में बना हुआ है ऐसा, राइट. वही पिक्चर्स रिफ्लेक्ट होती हैं, बुक्स को रिवाइज ही नहीं किया जाता. जेंडर बायस बुक्स हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, हमेशा मेल को दिखाया जाता है, उसको रिवाइज किया जाना चाहिए, राइट. तो उनको और एम्पावर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई. टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन द स्कूल एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, टू एनरिच एंड एनहांस टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल, के ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़े, राइट. खाली बॉयज ही क्यों पढ़े, गर्ल्स भी पढ़े, तो दे शुड एनरोल देमसेल्व्स, राइट. सो एंड इसके सैलिएंट फीचर्स क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट टू द गर्ल्स स्टूडेंट्स क्लास 11th and 12th to prepare for engineering entrance examination.
फ्री सपोर्ट उनको प्रोवाइड किया जाता है. Availability of tutorials, videos, study material, organization of virtual contact classes, right, at 60 designated city centers. Also, assessments designed to provide useful feedback on learning पर proper feedback दिया जाता है. Remedial teaching भी किया जाता है. Peer learning and mentoring opportunities for meritorious students. मोटिवेशन सेशन, मोटिवेशन बहुत जरूरी रहती है हम सभी के लिए, राइट. तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि बच्चों को पढ़ाएं, दे शुड सेंड देम फॉर दीज काइंड्स ऑफ स्ट्रीम्स, राइट. हमेशा यही नहीं कि लड़की है तो उसको होम साइंस ही जाकर लेना है और वही सब चीजें सीखनी है. इट्स नॉट लाइक दैट, राइट. टू एनकरेज गर्ल्स एनरोलमेंट इन साइंस स्ट्रीम इन द इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ये स्कीम लॉन्च की गई, आप याद रखिएगा. स्टूडेंट हेल्पलाइन सर्विसेज लॉन्च की गई ताकि आप अपने डाउट्स ऑनलाइन फोन करके क्लैरिफाई कर सकते हैं. मॉनिटरिंग लर्निंग, सपोर्ट टेक्नोलॉजी, कांस्टेंट मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ द स्टूडेंट प्रैक्टिसेस, उनकी प्रोग्रेस को फीडबैक देना प्रॉपर ताकि वो इंप्रूवमेंट हो. ये है इसके सेलिएंट फीचर्स. एलिजिबिलिटी क्या है? एज आई टोल्ड यू, द प्रोग्राम इज ओपन टू इंडियन सिटीजंस, okay, residing in India only, and all girl students studying in class 11th only from KVs and NVs government schools of the recognized CBSE affiliated, maybe the private schools also, they are eligible to apply. Girl students enrolled in class 11 physics, chemistry, mathematics और PCM streams में engineering है तो obviously ये stream को follow करते हैं. Alright, and minimum 70% marks होने चाहिए in class 10 में. Overall 80% marks in sciences and mathematics, and for board which follows CGPA system, जो भी है उनका 8 और 9 CGPA science and mathematics में. And reservation as per JEE advanced, right, वो सारे reservation criteria भी साथ में defined है. And annual family income should be less than 6 lakhs per annum. अगर इससे कम है then they can go ahead with that Udaan scheme, right, for girls. Now, इसकी methodology क्या है? The selection of the students is based on merit के basis पर select किया जाता है. Considered against the city chosen by the candidate for the weekly virtual classes के लिए वो सिटी भी बच्चे के अकॉर्डिंगली चूज करते हैं जहां पे वो रहते हैं, जो नियर बाय है. द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स विल हैव एक्सेस टू ऑनलाइन पोर्टल का एक्सेस होता है, राइट. एंड based on class 11 and 12 का जो उनका PCM का स्ट्रीम है. एंड द पोर्टल विल हैव कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ, जैसे आपको पहले शेयर किया कि वीडियोस हैं, नोट्स हैं, टेक्स्ट हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, हेल्पलाइन है. दे कैन गो अहेड एंड दे कैन आस्क द क्वेश्चंस. एंड वंस लॉग्ड इन, स्टूडेंट प्रोग्रेस विल बी मॉनिटर्ड एंड ट्रैक्ड ऑन द लर्निंग. उसकी जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक होती रहती है. जैसे हम पता है कि LMS में या ऑनलाइन जितने हमारे पास पोर्टल्स हैं उसमें जब हम पढ़ते हैं तो करते हैं, हमारी जो प्रोग्रेस है वो मॉनिटर होती जाती है. हमने क्या कर लिया, क्या हमारा असेसमेंट छूट गया, क्या हमने कर लिया, कितने मार्क्स आए, विल बी एबल टू चेक ऑन द portal. Students will have interactive group where they will be able to interact with peers. Teachers के साथ में कर सकते हैं. देखिए ऑनलाइन पोर्टल पर जिस डिस्कशन के ग्रुप होते हैं, राइट, we participate in that, we discuss with them. हेल्पलाइन भी अवेलेबल होती है. तो that is the methodology for Udaan, right. Now the next is बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. इसका क्या है? प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बायस्ड सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन. की ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक ही जो भी हमारी जो सोसाइटी है उसमें तो ऐसा ही हुआ ना कि हुआ बेटा तो ढोल बजाया, हुई बेटी तो मातम छाया. यही होता है हमारी सोसाइटी में. उसको रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो लॉन्च की गई. एंश्योरिंग सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, उनको सर्वाइव करने का मौका मिले. पहले सर्वाइव करेंगी तभी तो पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, खाने को मिलेगा तभी तो, राइट. एंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड एट ईच एंड एवरी लेवल. तो उस चीज के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम शुरू की गई. एंड बालिका समृद्धि योजना BSY. जी, अगर आपको इन सारी स्कीम्स की डिटेल्स चाहिए, आई विल बी शेयरिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अभी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नॉलेज चाहिए कि कौन कौन सी स्कीम शुरू की गई. एंड यू विल बी एबल टू राइट इन हेडर्स के नीचे एटलीस्ट 4-5 सेंटेंसेस तो आप लिखेंगे. 2-3 पॉइंट्स यू विल राइट कि ये योजना है क्या. तो 2-3 आप पॉइंट्स लिख लेंगे. डिटेल में पढ़ना है तो आई विल बी शेयरिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द सोर्सेज आल्सो जहां से ये डेटा लिया गया है. यू कैन go through that, right. Balika Samriddhi Yojana BSY to change negative family and community attitude towards the girl child at the birth and towards her mother. बहुत बार ऐसी जगह पर क्या होता है कि जब लड़की पैदा होती है तो ना तो वो लड़की को एक्सेप्ट किया जाता है ना उसकी माँ को एक्सेप्ट किया जाता है कि इसने लड़की को जन्म दिया है. कैन यू इमेजिन, इवन दिस 21st सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, अभी भी ऐसा होता है. टू इम्प्रूव एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ द गर्ल चिल्ड्रन इन स्कूल्स. स्कूल्स में बहुत बार लड़कियां एडमिशन ले लेती हैं
लेकिन वो रिटेंशन नहीं हो पाता, वो ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, राइट। तो कि पहले तो एडमिशन करा दिया कि फ्री एडमिशन है, बाद में लगा कि नहीं घर में और भी प्रायोरिटीज हैं, काम है, इसको यहाँ भेजना है वहां भेजना है, तो शी विल बी अ हेल्पर इन अर्निंग मनी फॉर द फैमिली, मोर इनकम आएगी या समथिंग लाइक दैट, विल बी एबल टू सर्वाइव या ऐसा करके। तो वो ड्रॉप आउट रेट्स हो रहे थे, उसको रिटेंशन उसको करने के लिए, रिटेन करने के लिए BSY स्टार्ट किया गया टू राइज द एज एट द मैरिज ऑफ द गर्ल्स, कि उनकी एज बाद में इतने साल की होगी तब ये पैसा मिलेगा, 18 साल की होगी, ताकि जब पैसा तब मिलेगा तो तभी तो वो शादी करेंगे ना, तो उससे पहले तो उसकी शादी के लिए नहीं जाएंगे। टू असिस्ट द गर्ल्स टू अंडरटेक इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, कि वो पढ़े बढ़े और आगे एम्पावर हों, दे शुड बी देयर इन द अर्निंग मनी फॉर द फैमिली टू, राइट। ये नहीं कि छोटी एज में से ही काम करके हाउस होल्ड चोर्स करके कमाना शुरू कर दिया, नो, पढ़ने के बाद है राइट एज, पढ़ाई लिखाई हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद दे शुड गो एंड वर्क, राइट। And now Sukanya Smriddhi Yojana, I have already shared with you SSY. इसलिए the government of India has made Sukanya Smriddhi Yojana accessible for everyone. Hence ये सबके लिए है, इसके लिए वो नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एक इनकम की कोई कैटेगरी होनी चाहिए, आपका इतने से कम है तो, नो, इट इज फॉर एवरीबडी। किस लिए है कि गर्ल्स को भी शेयर मिले प्रॉपर, राइट। जस्ट द पेरेंट्स और द लेजिटिमेट गार्डियन ऑफ द गर्ल चाइल्ड कैन ओपन अ SSY अकाउंट, एंड द गर्ल चाइल्ड ऑट टू बी अंडर 10 साल के नीचे होनी चाहिए उसकी एज। अकाउंट कैन बी ऑपरेशनल टिल द गर्ल चाइल्ड इज 21 years old, 21 साल की जब लड़की हो जाएगी तब तक ही ऑपरेशनल रहता है। एंड द ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कैन बिगिन फ्रॉम ₹250 एंड द लिमिट कितनी है, 1,50,000 ईयरली, ओके, विद ऑन गोइंग डिपॉजिट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ 100, जितना जितना वो जमा कराते जाए हर रोज 100 जितना करके उनको जमा कराना है, मंथली कराना है, 6 मंथ कराना है, जैसे भी कराना है, इट शुड बी like that. And an individual girl child cannot have numerous कन्या समृद्धि अकाउंट्स, ये नहीं कि एक लड़की के लिए आप 2 4 5 मम्मी भी खोल ले पापा भी खोल ले डिफरेंट अकाउंट्स, नो, ओनली वन अकाउंट। तो उसके लिए लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है या और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है एक अकाउंट खोल सकते हैं। और ओनली 2 सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट्स कैन बी परमिटेड पर फैमिली, एक फैमिली में अगर 2 गर्ल्स हैं तो उनके 2 अकाउंट्स होंगे, 3 है तो भी यू कैन नॉट ओपन मोर देन 2 अकाउंट्स, राइट। ना बेनिफिट्स क्या है, हाई इंटरेस्ट मिलता है इसमें, टैक्स सेविंग होता है, जितना आप अमाउंट इसमें जमा कराओगे उतना आप टैक्स सेविंग कर सकते हो, राइट। एंड गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट्स, मेच्योरिटी के जो बेनिफिट्स हैं जैसे जैसे वो इंक्रीज हो जाता है इंटरेस्ट रेट, तो उसके बाद में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो दिस यू कैन राइट। नाउ एक है लाडली स्कीम, ये लॉन्च की गई थी हरियाणा में सेकंड गर्ल के लिए, जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी जगह पर, जैसे एक बच्ची है, दूसरी अगर पता चला कि लड़की होने वाली है तो दे इंटेंट फॉर अबॉर्शन एंड ऑल, तो उस चीज को रोकने के लिए किया गया कि सेकंड गर्ल जब होगी, द स्कीम केम इनटू इफेक्ट from year 2005 and is applicable for the families having a second girl child born after 20th August 2005। उसके बाद जिनकी second girl born होगी उसको ये इनिशिएटिव दिया जाएगा, राइट। उनको ये प्रोविजन दिया जाएगा कि वो इनका पर्टिकुलर एक अमाउंट है बच्चे के अकाउंट में जमा हो जाएगा, राइट, सो दैट लड़कियों को मौका मिले सरवाइव करने का, राइट। एंड इसके बेनिफिट्स क्या है, लाइक द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर अ प्रोविजन ऑफ ₹5,000 पर ईयर पर फैमिली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल तक उसको 5,000 पर ईयर उनको मिलता है। एंड देन अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन किसान विकास पत्र एंड सच इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द नेम ऑफ द मदर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, मम्मी के नाम पर वो चीज होती है। एंड इफ द मदर ऑफ द चाइल्ड इज नॉट अलाइव, सच इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द नेम ऑफ द फादर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, अगर मम्मी अलाइव नहीं है देन ओनली फादर को वो जो उसके नाम पर ये स्कीम करी जाती है। एंड अकमुलेटेड जो टोटल अमाउंट होता है अलॉटेड टू द गर्ल चाइल्ड व्हेन शी अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स, बस इतना लिख रहे हैं इसमें, राइट, सो दैट इज मोर देन इनफ। कन्या कोष स्कीम, देन फिर फर्स्ट गर्ल के लिए भी तो स्कीम करना पड़ा है लोगों ने कि फर्स्ट गर्ल के लिए क्या है, तो उस चीज के लिए एक स्कीम हुआ आपकी बेटी हमारी बेटी, कि इसमें जो है हम भी इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं, दैट इज कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना से बेटियों का भविष्य हो रहा सुरक्षित, कि उसमें हम अपने जमा कराए अगर मनी, अगर हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो एटलीस्ट जो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीपल हैं उनकी गर्ल्स के लिए आगे उनको अमाउंट जो है वो दिया जाता है, राइट। Like is written on the screen also, first girl child born in SC ST BPL families, second or multiple girls born on after
दिस मच, एंड थर्ड गर्ल बोर्न ऑन आफ्टर August 24, 2015। उसके बाद में अगर गर्ल किसी के यहाँ पर गर्ल बर्थ होता है किसी का, तो देन यू कैन गो हैड विद दैट। तो हम इसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं अगर हम अपनी तरफ से हेल्प करना चाहते हैं फॉर द बीपीएल फैमिलीज, SC/ST फैमिलीज, दोज हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, राइट। नाउ कन्या कोष स्कीम फॉर द फर्स्ट गर्ल, हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर खट्टर, ये सारा पूरा एक न्यूज का कवरिंग है जिसमें आपको ये देखना है कि सम ऑफ ₹21,000 वुड बी डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड। जब उसका बर्थ होता है तो उसके बैंक में 21,000 रुपए जमा होता है। जब बच्ची 18 साल की हो जाती है तो उसको ये अमाउंट दिया जाता है, राइट। एंड मतलब the amount would increase to 1 lakh when the girl attains the age of 18 years, right? So बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये आगे उसको और आगे प्रमोट करने के लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई, राइट, इन सिंक विद दैट। नेशनल स्कीम्स ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। बच्चे ऐसा नहीं कि प्राइमरी एजुकेशन पढ़ ली उसके बाद नहीं पढ़नी जाती, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए और आगे बच्चियां पढ़ने के लिए जाएं, उसके लिए नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स द गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन ये लॉन्च की गई। हमने जैसे बाइसाइकिल स्कीम का भी पहले पढ़ा था बिहार में, राइट। एंड द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये सेंटर के थ्रू स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नेशनल स्कीम है, राइट। तो थ्रू आउट कंट्री इट इज वैलिड। The Girls for the Secondary Education was launched in May 2008, and it aims to promote enrollment of the girl child in the age of 14 to 18 at secondary stage, especially those who passed class 8th, and to encourage the secondary education. उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई, right? नाउ ये स्कीम क्या कहती है? टू प्रमोट एनरोलमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन। ये आपको बता दिया, जिन्होंने 8th क्लास कंप्लीट कर रही है वो आगे 10th और 12th क्लास पढ़ने के लिए जाएं। ऑल SC/ST गर्ल्स हु पास 8th एंड द गर्ल्स हु पास क्लास 8th एग्जामिनेशन फ्रॉम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, राइट, irrespective of whether they belong to SC or other tribes। I mean अगर वो उससे नहीं भी बिलोंग करते, अगर वो उस विद्यालय में पढ़ी हैं, even then they will be given that kind of provision and enroll for class 9th in the state or UT government and government aided or maybe the local body schools. Girls should be below 16 years of age, 16 साल से कम उनकी उम्र होनी चाहिए on joining class 9th, right? And married girls studying in the private unaided schools, enrolled in schools run by central government like KVs, NVS, Navodaya Vidyalayas, Kendriya Vidyalayas, right? CBS affiliated to are excluded. सम इसमें क्या होता है? सम ऑफ ₹3,000 इज डिपॉजिटेड इन द नेम ऑफ द एलिजिबल गर्ल्स एज फिक्स्ड डिपॉजिट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 3,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट से FD उनकी करा देती जाती है कि 18 ईयर की जब हो जाएंगी, राइट, आफ्टर एंड पासिंग ऑन 10th क्लास एग्जामिनेशन, सो दे आर एंटाइटल्ड टू विदड्रॉ दैट अमाउंट, ताकि एटलीस्ट पेरेंट्स को लगे इनको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है। इसी तरीके से शायद वो समझ जाए, राइट। वैसे तो ये एक तरीका नहीं है, मतलब लॉजिकल वे नहीं है समझने का। एनीवेज, लाडली लक्ष्मी योजना इन MP ये लॉन्च की गई, राइट। तो इसमें क्या होता है इस स्कीम में? देखिए यहाँ पर हम ये जो पढ़ लें कि इस योजना के अंतर्गत ये होता है कि अगर आप लड़की को 6th क्लास में लड़की को एडमिशन दिलाते हो तो 2,000 रुपये आपको मिल रहा है। क्लास में जब बच्चा 9th क्लास में जब वो एडमिशन ले रही तो 4,000 रुपये उसके अकाउंट में जमा हो रहा है। क्लास 11th में जब लड़की एडमिशन ले रही है तो 6,000 रुपये उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहे हैं। एंड देन 12th में जब एडमिशन हो रही है तो देन उसको 6,000 रुपीज का जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है, वो दिया जा रहा है। इस तरीके से ताकि मोटिवेट, ऑब्जेक्टिव क्या है कि लड़कियों को एटलीस्ट मौका तो मिले आगे सीनियर क्लासेस में जाके पढ़ने का। तो ये है लाडली लक्ष्मी योजना, राइट। अब थोड़ी सी जो योजनाएं हैं इनका आप एग्जाम्पल दे सकते हो, सारी डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये जैसे महाराष्ट्र में है मांझी कन्या भाग्यश्री योजना, ये इसका भी आप नाम बता सकते हैं। वाली दीकरी योजना गुजरात में, राइट। सो देन कन्या भाग्यश्री स्कीम इन कर्नाटका। तो ये कुछ ऐसे आप ये कह सकते हो कि थ्रू आउट द कंट्री हर एक स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट जो स्कीम्स हैं वो लॉन्च की गई हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं, सबकी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। अब आगे अगर देखें कि तेलंगाना में, देखिए वहां पर भी एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है। तमिलनाडु में चाइल्ड वेलफेयर, गर्ल चाइल्ड वेलफेयर स्कीम है ये इन तमिलनाडु, तेलंगाना। एंड देन अगली है महिला समाख्या योजना। व्हाट इज दैट? वी कैन डिस्कस इन डिटेल। महिला समाख्या, महिला समाख्या क्या है? एजुकेशन विल बी यूज एज एन एजेंट ऑफ बेसिक चेंज इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन का स्टेटस इंप्रूव होना चाहिए। इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द अकमुलेटेड डिस्टॉर्शन ऑफ द पास्ट, देयर विल बी अ वेल कंसीव्ड एज इन फेवर ऑफ वुमेन, राइट। एंड हम जो है एजुकेशन के थ्रू
लेडीज का, वुमेन का जो स्टेटस है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, राइट, एंड एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन इज पॉसिबल, राइट, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल कैसे? सबको एक साथ आना पड़ेगा, ज्वाइन हैंड्स, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो हम इक्वालिटी की पहले इक्वालिटी करें, हम इक्विटी तक लेकर आए कि गर्ल्स को ज्यादा एडवांटेज मिलना चाहिए, देन ओनली वो प्लेनेट 50-50 का जो सपना है वो पूरा हो सकता है, राइट। यहाँ तो इक्वली नहीं मिलता है, इक्विटी की बात पता नहीं कैसे पॉसिबल होगी। महिला समाख्या, इट्स रिकॉग्नाइज दैट एजुकेशन कैन बी इफेक्टिव टूल फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। क्या करना है उसमें? एनहांसिंग सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ये बहुत जरूरी है, दब के नहीं रहना किसी से। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ वुमेन, बिल्डिंग अ पॉजिटिव इमेज ऑफ वुमेन बाय रिकॉग्नाइजिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी। वुमेन क्या न्यूज में बहुत स्प्रेड होना चाहिए, गर्ल्स क्या, वुमेन का जो रोल है दैट इज बीइंग प्लेड बाय देम इन सोसाइटी, सोशली एक्टिविस्ट हैं जो, पॉलिटिक्स में क्या क्या रोल है उनका, न्यूज़पेपर में प्रॉपर कवरेज होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में कैसे वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, डेवलपिंग एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, फोस्टरिंग डिसीजन मेकिंग एक्शन through collective processes, enabling women to make informed choices, अपनी चॉइस होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है, कौन से एजुकेशन में जाना है, कौन से एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में जाना है, हेल्थ के लिए स्पेशली रिप्रोडक्टिव केयर कि कैसे अपनी केयर करनी है, राइट, and ensuring equal participation in developmental process, providing information, knowledge and skill for economic independence, enhancing access to legal literacy and information relating to the rights and entitlements in the society with the view to enhance their participation on equal footing in all areas. हर एरिया में, पॉलिटिक्स है, कुछ भी है, एवरीथिंग, हर जगह पर empowerment, business, right, हर जगह पर जो फीमेल है उनको अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, राइट ना। हम अभी इक्वल की बात कर रहे हैं, जब हम इक्वल का एग्जैक्टली मतलब क्या है, ये नहीं कि हम सोचे कि एक जगह पर हम क्या बात कर रहे हैं, पहले क्या आ रहा था, 1/3 सीट की रिजर्वेशन पंचायत में, ये वो 1/3 सीट रिजर्व है कि उनको ये मिलना ही है, राइट। तो बाकी के जो है, अगर हम बात करते हैं 50-50 की, प्लैनेट 50-50 कि हर एक को मौका मिल रहा है, पहले तो उनकी सेक्स रेशो जो है वो प्रॉपर हो, उनका जो बर्थ के ऊपर जो रेशो है वो इक्वल लानी है, उसके बाद उनको मौके इक्वल मिलने चाहिए। इक्वल तक लाने के लिए कहीं ना कहीं हमें इक्विटी की भी जरूरत पड़ती है, ये जो हमें कहा जाता है कि ये प्रोविजंस हैं, ये ऐसा किया जाता है, उनकी फीस माफ है, या सब कुछ है, ये इक्विटी के लिए ही डिफरेंट प्रोविजंस की जाती है कि अगर फीस दे रहे हैं, मेल जो बॉयज हैं उनकी फीस जा रही है, गर्ल्स की अगर फीस नहीं जा रही है पर्टिकुलर, इसलिए ताकि उनको मौका मिले आगे बढ़ने का, ठीक है। तो ये बात होती है इक्विटी की। आगे है साक्षर भारत। साक्षर भारत इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नेशन वाइड लिटरेसी स्कीम ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग women's literacy in India. It was launched by Prime Minister on International Literacy Day in September 2009. And इस एम क्या है इसका? सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ नॉन लिटरेट एडल्ट्स इन इंडिया। एडल्ट एजुकेशन से ये रिलेटेड है साक्षर भारत। और ये देखिए, ये शबाना आजमी जी हैं, इसमें एक ये सॉन्ग भी है, शिक्षा का सूरज। आई विल बी शेयरिंग इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो आप देख सकते हैं। ऑल सारे जो बॉलीवुड के फेमस पर्सनालिटीज हैं वो इसमें है, शाहरुख खान, करीना, मीन वो याद रहेगा ना आपको कि क्या है साक्षर भारत, राइट। तो एडल्ट लिटरेसी से रिलेटेड है। मिशन क्या है इसका? एम टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन एडल्ट लर्निंग, रीचिंग आउट टू दोज हु मिस द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस एंड कंप्लीट, जो फॉर्मल एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए पर पढ़ना है उनको, तो साक्षरता की तरफ जाएंगे। साक्षर भारत ये 2009 में ये है वो लॉन्च की गई। इसको पीपल्स प्रोग्राम भी कहते हैं, right, with the government acting as a facilitator and a resource provider, but working closely with the local communities to tailor the program as per the needs of the people, right। चलिए, मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई। बहुत बार क्या होता है कि ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है ना कि पढ़ने के लिए ठीक है भेज दें, खाने कोई नहीं है पहले तो इसके लिए जिसको अक्षय पात्र और मे बी मिड डे स्कीम जो है वो लॉन्च की गई। मिड डे मील स्कीम के एम क्या है? अवॉइड क्लासरूम हंगर, इंक्रीज स्कूल एनरोलमेंट, कि एटलीस्ट खाना मिलेगा स्कूल में तो खाने के लिए जाएं, कि एटलीस्ट लेट्स गो देयर, राइट। एंड इंक्रीज स्कूल अटेंडेंस, अटेंडेंस को बढ़ावा मिले, इंप्रूव सोशलाइजेशन अमंग कास्ट, एड्रेस malnutrition, empower women through employment, ओके। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स। नाउ और क्या क्या स्कीम लॉन्च की गई?
ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, कि जो स्कूल में नहीं जा सकते हायर एजुकेशन के लिए बिकॉज ऑफ एन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कुछ भी है, तो एटलीस्ट दे कैन परस्यू सम कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। और हम भी क्या है, अगर जॉब में भी हैं तो जॉब के साथ भी वांट टू कंटिन्यू द एजुकेशन, लिटरेसी रेट बढ़ाना है, गर्ल एजुकेशन का बनाना है कि आप काम भी कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी ले रहे हैं, एंड देन वी कैन गो हैड विद द ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज। तो जितनी यूनिवर्सिटीज वो प्रोवाइड करती हैं कोर्सेज, यू कैन हाईलाइट देयर नेम्स ऑल्सो। ओके, एंड एक है यूजीसी सक्षम पोर्टल, राइट, ऐसा कुछ दिखता है, वेबसाइट से मैंने लिया है, एंड ये यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन believes that a safe and healthy environment in higher education for the women students employees is necessary, is a prerequisite to quality education and research. यूजीसी ने क्या किया, अपॉर्चुनिटीज एंड इनिशिएटिव्स फॉर women फॉर हायर एजुकेशन, राइट, इन इंस्टीट्यूशन में उनको मौका मिले, अपॉर्चुनिटीज उनके लिए की, सपोर्ट एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉइज of higher education institutes, web resources in the form of government and United Nations policy documents for women. तो ये क्या है, Saksham portal. UGSC has developed Saksham, which is a dynamic portal that aims towards empowerment of women in the campuses through creating awareness. Awareness create करता है और girls को, women को मौका मिले empowerment, to get empowered. और इसके अलावा क्या किया गया, डे केयर सेंटर्स इन यूनिवर्सिटीज इन कॉलेजेस, ताकि अगर आप पढ़ रहे हो आफ्टर मैरिज ऑल्सो, बच्चे को कोई देखने के लिए नहीं है घर पे या कुछ भी, आपकी पढ़ाई में, आपकी जॉब में प्रॉब्लम नहीं आए, तो डे केयर सेंटर्स भी जो है वो खोले गए। इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ये लॉन्च किया गया, यू कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। विमेन के लिए हॉस्टल्स की फैसिलिटी, सारी चीजें, सारे इनिशिएटिव किस लिए हैं, टू फोस्टर द रेट ऑफ विमेन एजुकेशन, लिटरेसी का जो रेट है वो। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, elected women representatives of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, elected women representatives in India, कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, राइट, उनमें कॉन्फिडेंस लाना, उनको वो सब सिखाना कि आप इलेक्टेड हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, राइट, अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे हम अपने टीचर के प्रोफेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स करते हैं, वी आर अवेयर ऑफ ऑल दिस, कि ये क्या क्या करना चाहिए, क्या हमें होना चाहिए, वो सारे टैक्टिक्स सिखाने, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए। Women education and economic development, this is very important topic and we asked in the short question as well. Women have been recognized as a crucial force in economic development of any nation. However, it's imperative to mention that traditionally their lives were confined to the four walls of the house. They were mainly engaged in the household chores, bearing and rearing of children, and were treated on different footings. Their existence was deeply influenced by the prevailing patriarchal system, which often results into deprivation of their basic rights as enjoyed by the male counterparts, including the right to education. खाने को नहीं मिलता, पढ़ाई का मौका नहीं मिलता, चार दीवारी के अंदर ही बंद होके रह गई. But with the advent of various legislations or reforms, women's movement worldwide, there was a major shift in the social cultural setup, and women's entitlement to education began to the recognized pivotal for nation's economic development. जैसे जैसे women को मौका मिला, पढ़े, different schemes आई, उनको promote किया जाए गया, तो उससे nation का भी economic development हुआ. On the other hand, history has revealed that in the Indian subcontinent, there was a worst scenario of women education. Women were denied their basic right to education, and such bias was deeply rooted in prevailing socio-cultural setup where females were treated inferior to men. बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं, यू नो वेरी वेल, कि गर्ल्स को मौका नहीं मिलता, उनको इन्फीरियर समझा जाता है. But in the backdrop of various social reform movements, women movements, Christian missionaries, new economic reforms in 1991, popularly called LPG concept, liberation, privatization, globalization. Women education in India witnessed a drastic change. Further research has noted a strong positive linkage between women education and economic development of any nation. Thus, keeping in view the importance of women education for an economic development of the nation, the present study, तो हम सारी चीजें कर रहे हैं, that is very very important, and various issues they are to be considered pertaining to the women education in India which has remained unaddressed. बहुत सारे जो points हैं, problems हैं, जिनको address नहीं किया गया, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है. बहुत सारे points ऐसे हमने discuss किए कि कौन सी problem है.
उनकी रुकावटें, उनके चैलेंजेस, उनके इश्यूज, तो उसको देखने की जरूरत है, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, वी विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग स्लाइड्स टू। तो राइट, तो उसके लिए एक रोबस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डेवलप तब होगा, विमेन जब पढ़ेगी, एम्पावर्ड होगी, कंट्रीब्यूट करेगी फैमिली की इनकम में एंड टोटल नेशन वाइड इनकम में, राइट। तो विमेन से रिलेटेड डिफरेंट लॉज भी बनाए गए हैं, यू कैन चेक ऑल दिस ऑन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राइट, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एंड ऐसे भी कुछ लॉज हैं जो वुमेन को मेन के इक्वल नहीं खड़े होने देते। 9 laws you can check, I have mentioned even the source also, right? So up you can go through that. Okay, Hindu law of inheritance, different religions have different inheritance laws. According to the Hindu inheritance law, the property of a woman who dies without a will is handled differently from that of a man. In the absence of the spouse and the children, the husband heirs inherit the women's estate. And Parsi law of inheritance क्या कहता है? Despite decreasing numbers in the Parsi community, those who marry outside the community are penalized. मतलब आज के जमाने में भी देखें, and non-Parsi women who is either a wife or a widow of a Parsi man cannot inherit the property. However, the children can. But again, a Parsi woman marrying a non-Parsi man cannot be considered a part of the Parsi community. ये women को inferior करते हैं ये सब points. No right to marital property, and upon separation or this, an Indian woman is entitled only to maintenance from her husband, and she has no right to assets such as house and commercial property brought in her husband's name and during the marriage. And prohibition of the Child Marriage Act. Another one is age of consent, marriageable age, right? And then related to Hindu minority, rape of a separated wife, and the Goa law on polygamy. I'll be sharing the link and you can go through that. Okay, you can go through, I mean, from the headings, you will be able to get to know what's there in detail, because the video will be too long. We'll start on discussing, keep on discussing each and every topic. GDI, Gender Development Index. GDI measures gender inequalities in achievement in the 3 basic dimensions of human development: health measured by female and male life expectancy at birth, right? तो ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर गैप, जेंडर एनालिसिस, देयर आर नंबर ऑफ टॉपिक, gender measurement also, right, in the upcoming video. So stay tuned because the video will be too long. So I'll be discussing the same in the upcoming video. Stay connected. Have a nice day.